please tell us a bit about your business? Basically, we are in civil and interior turnkey contracting business, Okay. and mainly we are working with corporate like Reliance, L&T, some government organization. Corporate and we are not in the private residential job and all that thing. Okay. We are still working with the Oberoi and builders and all, LTR, LTA, So when you say turnkey contractor, what all would come in that scope of work? Turnkey means we are constructing building also, Okay. and then after construction, sometimes they are asking for the finishes of civil item like flooring, ceiling, partition, Okay. doors, Mm-hmm. and we have a furniture manufacturing unit also. Okay. So we can provide them modular furniture, but Right. mostly for the commercial project, not for Right. residential. Right. So we can give them the turnkey means lock and key also. Mm-hmm. Once they have a plot, Right. we can give him a From lock and start key. to the end, everything involved. Yeah. Okay. Alright. So it's been pretty long since you've been in this. Last 30 years we Wow. are in this Wow. industry. So what would you say was the one factor which got you into this business 30 years back? Basically, we are in a partnership business. Okay. So my two other partners are in Bharuch. Basically, in Okay. my native place in Bharuch. Okay. They are doing some construction and all building Right. business. Right. So once upon a time, they got the opportunity. Some of their clients required some furniture and all these things. Okay. So they brought some furniture from Delhi and they make some exhibition in the company where the GNFC. Okay. There's a big colony, residential colony over there. They established one exhibition type of there, and for that they got the idea. Okay, why we are not starting this furniture manufacturing and interior business also? Right. So So you started with furniture manufacturing first. then they think about Surat. Surat is a quite bigger city than Bharuch, and one of my friend is also there. Okay. So we all together planned for the shifting to Surat, and I was in another business, but as a friend, we are a school time friend. Okay. So they proposed me also. Okay, why don't you join us? Right. Then I decided, okay, let's go with the friends and. Otherwise, in my career, this is start because of my partner only. Okay. Because my father's business is some grocery shop and all that. Okay. So that was your previous business. Yeah, I was not in my father's business. Okay. But I have started with them as Right. this furniture and interior. So before you started with the two partners, you said you were already in some other business. Yeah. What business was that? ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एंड वो बिजनेस ऐसा था कि वो मेरे पार्टनर्स का जो भी मेरे पार्टनर उनके फादर्स का बिजनेस था. अच्छा. और मैंने मतलब पढ़ाई ख़त्म करने के बाद कुछ छोटे मोटे बिजनेस किए और मैं फिर गवर्नमेंट जॉब में भी था. अच्छा. लेकिन मैं कुछ बिजनेस ढूंढ रहा था और वो लोग कुछ उनका एक यूनिट बंद कर रहे थे. तो मैंने उनको प्रपोज किया कि आप बंद कर दो तो मैं रन करने ट्राई करता हूँ. 3 साल मैंने चलाया और उसमें भी मैं काफ़ी सक्सेस था. लेकिन जब ये अपॉर्चुनिटी मिली कि ये फ्रेंड लोग सब सूरत जा रहे हैं और वो ब्रिक्स बिजनेस से बेटर वाइट कॉलर बिजनेस है और सब साथ में रहेंगे. ओके. So if you could help us take us through the journey of this 30 years. It's been a pretty long time. Okay. I think you're one of the older players in the industry. Yeah. So if you could बेसिकली हमने सूरत पहले जाके वन ऑफ माय पार्टनर इज अ डिज़ाइनर. Okay. इज नॉट अ क्वालिफाइड डिज़ाइनर बट ही इज हैविंग इंटरेस्ट इन इंटीरियर बिजनेस. तो पहले हमने सूरत में कुछ रेफरेंस से प्राइवेट डायमंड्स वाले जो वहाँ थे उनके ऑफिसेस उनके रेसिडेंस वगैरह
1-2 साल हमने 2 साल तक वो काम किया। ओके। और वो काम में एक इश्यू ऐसा था कि वहाँ लोग प्रोफेशनलिज्म थोड़ा कम था कि कंसल्टेंसी बिजनेस जो हम कर रहे थे तो कंसल्टेंसी 5% फीस दे देते थे, उससे ज़्यादा तो खर्चा आता था ऑफिस वगैरह चलाने। लेकिन बाकी सब जो सेम बिजनेस करें उनको पूछा कि आप कैसे सर्वाइव करते हो 5% फीस। कंसल्टेंसी, प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी, मतलब उनका घर बनाना है तो पूरा मटेरियल लेबर वगैरह जो भी होगा उसके ऊपर 5% अपने को फीस मिलता है। बट आपको प्रोजेक्ट मैनेज करना, हाँ, टोटल सब कुछ हमें मैनेज, डिज़ाइन हमें बनाना है, मटेरियल हमें प्रोक्योरमेंट करना है, लेबर प्रोक्योरमेंट करना है, काम एग्जीक्यूशन करना है, उसके सुपरविजन सब कुछ हमारे स्कोप में रहता है। वो क्लाइंट तो क्या डायमंड का व्यापार है, उसको नहीं, वो अपना फ्लैट नया खरीदा या ऑफिस नया खरीदा तो देखा, ठीक है, उनको दिखा दे, ये उनकी रिक्वायरमेंट उनको समझा देते कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐसा ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं। हाँ। तो उस बिजनेस में क्या था कि 5% फीस, मतलब उनको ऐसा लगता था कि तो 5% से ज़्यादा तो खर्चा आता है। लेकिन बाकी अदर्स जो हमारे सेम लाइन वाले उनको पूछा आप कैसे इसको सर्वाइव, तो बोलता है कि वो फीस तो मिलता है लेकिन बाकी जो मटेरियल वगैरह में जो कमीशन वगैरह मिलते हैं उससे, तो वो एक टाइप का मतलब माइंड में आता था कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, गिल्टी माइंड फिट था। तो उस दरमियान हमें हमारा एक फ्रेंड था जो भरूच से फ्रेंड था, वो रिलायंस इंडस्ट्री हजीरा में कुछ प्रोक्योरमेंट या कॉन्ट्रैक्ट डिवीज़न में था। वो कभी आया कि यार मेरा कुछ छोटा मोटा काम है, वो जो हजीरा है वो सूरत से 18-20 किलोमीटर दूर था। अच्छा। और वहाँ जाके कोई सूरत का कोई कॉन्ट्रैक्टर काम करने के लिए रेडी नहीं था छोटे मोटे काम के लिए। तो उन्होंने बोला यार आप मेरा छोटा मोटा काम करवा दो, हमने करवा दिया। फिर उसने बोला कि यार हमारे पास तो बहुत काम होते हैं, आप हमको क्यों, मतलब हमारे साथ काम क्यों नहीं करते हो। धीरे धीरे उनके साथ काम किया, फिर वो हमको कॉर्पोरेट कल्चर हमारे सूट कर गया, क्योंकि उसमें सब कुछ वाइट का काम होता है, चेक से काम होता है, उसमें 2 नंबर का कोई बिजनेस होता नहीं है, हमको बहुत सूट कर गया। और फिर हम लोग उसमें हजीरा में काम करते थे, तो उसके साथ साथ में उसी बेल्ट में NTPC था, SR था, इटको था और ONGC भी था, गेल था। तो वो सभी कंपनियों को फिर हमें अप्रोच करना चालू किया। धीरे धीरे हमारा टर्नओवर बढ़ने लगा। ये हमने जो काम किया, फिर हम बाहर के भी अहमदाबाद IIM का काम करते थे, हम टेंडर भरना चालू किया, मतलब धीरे धीरे चालू किया। फिर हम लोग 2004-5 में हमने, मतलब 2000 में हमने हमारा कुछ खुद का ऑफिस लिया, उसका इंटीरियर करके बैठे थे। तब तक हम एस्टेब्लिश थोड़े हो चुके थे। फिर 2004-5 में हमने सोचा कि हमें मॉड्यूलर फर्नीचर का भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर उसी का था। फिर उसके लिए सोचा कि भाई अगर मॉड्यूलर फर्नीचर करना है तो इंडिया लेवल पे करना चाहिए, और इंडिया लेवल पे करना है तो फैक्ट्री बॉम्बे में होना, मुंबई में होना जरूरी है। और इन बिटवीन क्या था, 2000 से 2004-5 तक हम लोग बॉम्बे में रिलायंस के काफ़ी प्रोजेक्ट करते थे। हमको एक गेल का कंस्ट्रक्शन का भी प्रोजेक्ट मिला था यहाँ पर बेलापुर में। अच्छा। और हमारा एक गेस्ट हाउस ऑफिस सब नवी मुंबई में एस्टाब्लिश था ही। तो फिर हमने जब मॉड्यूलर फर्नीचर का फैक्ट्री बनाने का प्लान किया, तो हमने फिर ये जगह लिया जहाँ हम लोग बैठे हैं। तो जगह लिया हमने, बिल्डिंग बनाया वगैरह कर, फिर हम तीन पार्टनर बॉम्बे शिफ्ट हो गए। ओके। और सूरत में ऑलरेडी जो हमारा, मतलब हमारे साथ काम करते थे, वो 2 लोगों को पूरा सूरत ऑफिस का ऑपरेशन हम कंट्रोल किए, अच्छे से संभाल। और धीरे धीरे करते बस अभी बॉम्बे में आके हमने मॉड्यूलर फर्नीचर के साथ साथ हमने बहुत सारी रिलायंस के और दूसरी कंपनियों का कॉन्टेक्ट करके काम, मलबार क्लब का भी काम किया। ऐसे मतलब टेंडरिंग का काम हम लोग ज़्यादा करते हैं। सर मॉड्यूलर फर्नीचर कौन से हमने मॉड्यूलर फर्नीचर में हमने, मतलब हमारा कोई ब्रांड नेम नहीं, हम लोग कस्टम मेड बनाते हैं। हमारे जो प्रोजेक्ट्स आते हैं, टेंडर आते हैं, उसमें बहुत सारा कुछ फर्नीचर बनाना होता है। और बेसिकली रिलायंस को ही, रिलायंस वाले भी इंसिस्ट कर रहे थे कि आप मॉड्यूलर फर्नीचर बनाना। तो जामनगर में पूरी कॉलोनी, जो उनकी इतनी बड़ी कॉलोनी, पूरे कपबोर्ड वगैरह है वो हमारा बनाया हुआ है। और अभी हमने LNT का भी काफ़ी बड़ा 3000 वर्क स्टेशन का, लेकिन हमारी कोई ब्रांड नहीं है। अच्छा। लेकिन हमने क्लोवर के साथ, चाइना का क्लोवर करके बहुत अच्छी है, उसके साथ टाइप किया है। तो हमारा मतलब वो क्लोवर, BH क्लोवर ब्रांड ऐसा हम लोग, मतलब बाकी ऐसा कोई स्पेसिफिक ब्रांड, ऐसा ब्रांड को प्रमोट किया ऐसा नहीं है, हम लोग कस्टम मेड ही बनाते हैं। अच्छा।
सो फॉर प्रोजेक्ट जो भी प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट सूट करे हमारी कोई उसके प्रोडक्ट भी according- नहीं है कि भाई ये कपबोर्ड हम ऐसा Right. बनाते हैं, हम बेड बनाते हैं, ऐसा नहीं है। जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से बनाते हैं। हम बेसिकली अभी मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग जो मैक्स वगैरह के जो अपने रिटेल शोरूम उसमें हम उनकी जो रिक्वायरमेंट है, रैक वगैरह, टेबल Right, वगैरह, जो उनकी right. रिक्वायरमेंट है वो पूरा फर्नीचर हम लोग देते हैं। अच्छा। सो दिस वाज 2005 में आपने फर्नीचर का भी शुरू हाँ, वो एक integrate मतलब कर हमारा लिया। बैकवर्ड इंटीग्रेशन की हाँ। ऐसा भी की तो वैसा हाँ। हमने स्टार्ट किया। लेकिन बेसिकली हम लोग कॉन्ट्रैक्टिंग में ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ हमारा। अच्छा। हमने 7-8 साल पहले से थोड़ा कंस्ट्रक्शन का भी हमने टर्नओवर बढ़ाने के लिए हमने कंस्ट्रक्शन का भी बिजनेस स्टार्ट किया। मतलब एकदम बिल्डिंग बनाने का। पहले हम लोग Right. कंस्ट्रक्शन करते थे लेकिन वो बिल्डिंग मतलब फाउंडेशन से नहीं बनाते थे, हाँ ज़्यादातर फिनिशिंग में थे। जैसे कभी ब्लॉक वर्क, प्लास्टर का काम लिया, टाइलिंग लगाया। लेकिन फिर अभी बिल्डिंग हमने काफ़ी बिल्डिंग बनाए। हमने गोवा में एक हॉस्पिटल बनाया, राइट हमने एक पूना में 2 लाख स्क्वायर फीट का पूरा बिल्डिंग टर्न की जो बोल रहे हो उसमें प्लॉट भी हमने अलॉटमेंट लिया, बिल्डिंग बनाया। उसमें एक फ्रांस की कंपनी को रेंट पे दिया, वो सब किया। हमने ये बिल्डिंग जहाँ बैठे वो भी हमने बनाया। फिर एक रबाले में हमने एक बिल्डिंग बना के शिप्ला को भाड़े पे दिया है। अच्छा हमारा एक अभी जयपुर में IT पार्क बन रहा है, पूरा 2 लाख स्क्वायर फुट का है। काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें फर्स्ट फेज में 2 लाख फुट कंस्ट्रक्शन। उसके अलावा हमने मतलब रिलायंस के लिए MP में मतलब प्रीफैब स्ट्रक्चर भी बनाया था। अच्छा काफ़ी कंस्ट्रक्शन के भी काम किया। सो ऐसे बोल सकते हैं कि एवरी फ्यू इयर्स में आपने आपका प्रोफाइल में इसको बढ़ाया कंटिन्यूसली केप्ट इंक्रीजिंग। टर्नओवर बढ़ाने के लिए प्रोफाइल में स्कोप इसलिए बढ़ाना पड़ता है कि भाई अगर आपको एक ही चीज़ को पकड़ के बैठते हो तो हो सकता है कि उसमें आपका टर्नओवर जितना आप चाहते हो उतना काम नहीं मिले। बेसिकली हमारा क्या पहले से मार्केटिंग बहुत कम था। अच्छा हम लोग टेंडर पेपर में आते हैं या ऑनलाइन देख के या हमारे रेफरेंस है, क्योंकि हमको काम से काम हुआ। हम रिलायंस से लास्ट 30 ईयर से कंटिन्यूस काम कर रहे हैं। अब जैसे हमने IIM अहमदाबाद के साथ काम किया तो 6-7-8 साल तक कंटिन्यूस काम किया। अभी हम LTR से काम कर रहे थे तो 5-6 साल से कर रहे, तो हम लोग को रिपीटेड ऑर्डर ज़्यादा आता है। राइट क्योंकि हम लोग मार्केटिंग मतलब जरूरत ही नहीं पड़ी कभी, और हमने कभी मार्केटिंग के लिए इतना कुछ किया नहीं है। राइट अभी हम लोग मतलब टर्नओवर मतलब बढ़ाने का काफ़ी एग्रेसिवली ट्राई कर रहे हैं। अच्छा हम लोग थोड़ा बड़े प्रोजेक्ट लेने का और थोड़ा कॉम्पिटिटिव प्राइस में भी लेते हैं, प्रॉफिट कम ज़्यादा हो लेकिन टर्नओवर बढ़े, कंपनी का स्पान बढ़े। राइट अभी बहुत सारी कंपनियों के साथ हम काम कर रहे हैं। अभी स्टर्लिंग विल्सन से हमने काम लेना चालू किया तो 4-5 ऑर्डर क्वेरी है उनका। GSIDC गोवा में भी हमने 3-4 प्रोजेक्ट किया, उनका एक फॉरेस्ट हेडक्वार्टर का पूरा कंस्ट्रक्शन का काम किया। राइट हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि भाई अब geographically हमारा प्रोफाइल में स्कोप ऑफ वर्क भी बढ़े और हमारा क्लाइंटेज भी बढ़े। राइट तो क्या है कभी ना कभी आपको मतलब टर्नओवर बढ़ाने के लिए, अभी जैसे एक रिलायंस में कर रहे थे तो रिलायंस का डेवलपमेंट बहुत हुआ। रिलायंस के डेवलपमेंट के साथ साथ ही हमारा डेवलपमेंट हुआ। लेकिन सिर्फ रिलायंस में भी ऐसा था कि उनके पास और भी कॉन्ट्रैक्टर थे और हमको भी वो 2-4 ऑर्डर देने के बाद सोचेंगे कि डेकोरम वाले बहुत बिजी हो गए या बहुत ओवरलोडेड हो गए। ऐसा एक्चुअली है नहीं। हमने जैसे जैसे डेवलपमेंट हो गया, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा खुद का भी स्टाफ, बैक ऑफिस सब हमने एक्सपांड किया है। तो आज 10-12 कंपनी ऐसी है कि जहाँ से हमको रेगुलरली रिपीटेड इंक्वायरीज ऑर्डर वगैरह मिलता रहता है। वो और हम बढ़ाना चाहते हैं हमारा स्पान, ताकि हमको टर्नओवर जो एक 20-25% एवरी ईयर बढ़ना चाहिए, राइट वो टारगेट में तकलीफ नहीं हो। सो दिस इज अगेन द टारगेट इज 25%। दिस ईयर तो थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि कोविड की वजह से, लेकिन एवरी ईयर हम लोग सोचते हैं कि ये साल तो हमारा मतलब टारगेट ये है कि हम लोग लास्ट ईयर को मेंटेन कर ले तो भी बहुत है। राइट